सत श्री अकाल बच्चों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਮੈਥਸ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੋਰਡ ਸਮਸ ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 7 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਪਟਰ 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ एक्स O एक्स डैश एक्सिस, Y O Y डैश एक्सिस और इस Y एक्सिस ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਔਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ x ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ y ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मान -1 -2 ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ x ਵੀ ਔਰ y ਵੀ ਉਹ 0,0 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਏ ਔਰੀਜਨ ਇਜ਼, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 0,0 0,0 x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ 5,0 y ਧੁਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ x ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ y ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ x O x ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ, y O ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹ y ਐਕਸਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 5,0 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 0 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿੰਦੂ 5,0 y ਧੁਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। is point 5,0 lies on a y axis? No, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ। ਇਹ ਫਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ y ਧੁਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The distance of a point from y axis is, y axis ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ y ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂ, y ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ x ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। x ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ
डैश किया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस तो तुसी जड़ा ओदी इनू तुसी कहोगे वाई कोआर्डिनेट, ये वाई कोआर्डिनेट आएगा, वो आएगा वाई निर्देशांक, निर्देशांक वाई निर्देशांक। ओके, हुण नैक्सट असीं चलदे हां अगले क्वेश्चन दे उत्ते। दूरी सूत्र x1 प्लस x स्क्वेयर रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वेयर, ये सही है या गलत है? नेक्स्ट, इज दिस अ डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है? हाँ, इदा आंसर गलत, फॉल्स। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिखन लगी हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र जिन्हों असीं कहंदे हां, क्योंकि तुहानूं पता भी होना चाहिए सही क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला जिन्हों तुसीं दूरी सूत्र कहंदे हो, बराबर जो कि दो पॉइंट्स दे विच दी दूरी नूं निकालन ले है। जिद्दां मेरे को ए पॉइंट है, इहदे निर्देशक अंक हन x कॉमा y कॉमा b x2 y2, दोनों के निर्देशांक x और y कोआर्डिनेट दिते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले दे लई मैं स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। बच्चों, इस फॉर्मूले नूं बार बार लिखो ताकि सेम यह वाली गलती कि तुसी x और y कोआर्डिनेट जड़े x कोआर्डिनेट जब लैने उहदे विच साइन जड़ा है वह तुसी हमेशा माइनस का पाना है, यह गलती ना करो, इन्हू बार बार लिख के देखना है तुसी। ठीक है, ते आह सही वाला है, आह जड़ा दा एक्चुअली फॉर्मूला है वो मैं लिख के दिखाता, जड़ा इन्होंने आ लिखा होया है ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स धुरे दे उत्ते एक बिंदु है, उहदे निर्देशांक x, 0 हुंदे हन, क्या ये सही है? ये गलत है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स एक्सिस इज, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स एक्सिस इज x, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आना चाहिए इत्थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये तुसी दसना। हुणे मैं दोबारा दिखानी है तुहानूं। एक्स एक्सिस दे उत्ते कोई भी एक पॉइंट होए, चाहे वो इधर है तुहाडा चाहे इधर है, इहदे उत्ते हमेशा वाई तुहाडा 0 होएगा। एक्स अच्छी तरह याद कर लो कि एक्स एक्सिस दे उत्ते अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा उहदे उत्ते आएगा तो हमेशा वाई 0 होएगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस दे उत्ते आएगा तो हमेशा उत्ते एक्स 0 होएगा। तो यदा मतलब ये की है, एक्स मतलब मैं कोई पॉइंट इत्थे लवां, मान लो ये है तो तुहाडे को 4 ए पॉइंट कॉमा 0, तो यदा मतलब एक्स 4 है जे 0 है, ये मतलब ये सही है, तुहाडा ट्रू है, ये ट्रू है। ये तो मैं वैसे एग्जाम्पल दे के रख रही हूँ। अदरवाइज एक्स एक्सिस दे उत्ते चाहे नैगेटिव वाली साइड पॉइंट होवे, वाई तो लैफ्ट साइड होवे पॉइंट एक्स एक्सिस ते, चाहे वो लैफ्ट साइड होए, उहदे विच हमेशा वाई दा कोआर्डिनेट 0 होएगा। एक्स जिहड़ा है पॉजिटिव नैगेटिव डिपेंड करता है किहड़ी साइड दे उत्ते है। जेकर किसी त्रिभुज का खेत्रफल 0 वर्ग इकाई है तां उहदे शिखर डैश होणगे। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0 देन इट्स वर्टिक्स आर, उहदे वर्टिक्स किस तरह दे होणगे? त्रिभुज का जिहड़ा एरिया है तदी तुहाडा जिहड़ा है बनेगा अगर पॉइंट कुछ तुहाडे जिहड़े है दूरी ते उत्ते होणगे। अगर वो तुहाडे जिहड़े है उहदे शिखर अगर संरेखी हो गए, समरेखी सॉरी पंजाबी च तुसीं समरेखी कहोगे, समरेखी मतलब एक ही लाइन दे उत्ते आ जाणगे तां ओहदा एरिया जिहड़ा है उहनूं इंग्लिश च तुसीं कहोगे कोलीनियर। कोलीनियर है अगर वो पॉइंट, कोलीनियर दा मतलब हुंदा है समरेखी, मतलब 3 पॉइंट मेरे कोल हन, 3 पॉइंट हैं, अगर वो तीनों दे तीनों इको ही लाइन दे उत्ते लाई करते हैं तो 2 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर इफ दे लाई ऑन ए सेम लाइन। इको ही रेखा दे उत्ते जदी 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पॉइंट जड़े है स्थित होंदे हैं तां ओह समरेखी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो बनया ही नहीं,
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤਾਂ ਤਦ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿੰਦੂ -3, 10 ਅਤੇ 6, -8 ਨੂੰ ਮਿਲਾने ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ -1, 6 ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। Find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 or 6 and 6, -8 is divided by -1, 6। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆने ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ -3, 10, ਇਹਨੂੰ ਮੈंने A कहता। दूसरे पॉइंट ਨੂੰ मैंने कहता 6, -8, ਇਹਨੂੰ B किया। और एक इन A और B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ P कहता, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ -1, 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ A B ਨੂੰ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ K ਰੇਸ਼ੋ 1 ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ A ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ x1 y1 ਕਹੂੰਗੀ, ਔਰ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ y2 x2, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ AB ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਮੈਂ x, y ਕਹੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ AB ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਂ ओरिजिनल ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ m1 ਕਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ m2 ਕਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ m1 ਕਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ m2 ਕਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨਾਲ x ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ m1 x2 प्लस फिर m2 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन x1 सॉरी प्लस m1 प्लस m2 रेशो ਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ठीक है बराबर। चलो हुण असीं भर दिंदे आ। x की है मेरे कोल -1, मैंने इन्हू -1 भर दिता। ठीक है m1 मेरे को क्या, मैं k लिया है, k मल्टीप्लाई बाय 6, x2 इज 6 तो आ गया 6k प्लस m2 क्या है मेरे को 1 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है -3 तो ये आ गया -3 मेरे को। ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही हो गया, ओहो तो -3 बन गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 वो -3 बन गया अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करांगे, ਇਹ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚਿਓਂ डिनोमिनेटर तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा ते -1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इक्वल टू राइट साइड 6k प्लस मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। ठीक है हुण असीं ब्रैकेट खोल दिंदे हां, -1 मल्टीप्लाई बाय k -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 6k -3। हुण k दी टर्म असीं एक और ले आवांगे। ठीक है राइट थोड़ा इक्वलिटी दा साइन क्रॉस करके 6k इधर आएगा ये थोड़े को हो गया -6k इक्वल टू -3 और -1 इक्वलिटी दा साइन क्रॉस करके दूसरी हो जाएगा, दे सामने दा साइन चेंज हो जाएगा
+1 हो जाएगा। जिमें 6k ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ -k ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। -7k ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਲਟੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਈਨ लगेगा 3 ਦਾ, ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੋ, k ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/7 ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ 2:3, 2:7, ਠੀਕ ਹੈ। k/1 2:7 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, x ਤੋਂ ਰੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ए 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ x ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ y ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ਇੱਕ ਨੂੰ A ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ 2, -5 ਔਰ -2, 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ AP ਇਕੁਅਲ ਟੂ BP, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਡਾ कैंसल हो सके, ठीक है। हुण असीं शुरू करते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दी मैं P पॉइंट is equidistance from A and B, A और B तो इक्वल डिस्टेंस से सी, इसलिए मैं AP इक्वल टू BP लिखा। तुसी भी लिखना P बिंदु A और B बिंदुओं तो बराबर दूरी ते है, इसलिए AP बराबर है BP, AP होल स्क्वायर इक्वल टू BP होल स्क्वायर, ओके। हुण मैं फॉर्मूला तुहाडा इत्थे लगा रही हां स्क्वायर रूट दा। हुण असीं इन्हां नूं लिख लैंदे हां x1 y1, ठीक है, और इनू असीं लिख दिंदे हां x2 y2, ओके। फिर पहला असीं AP डिस्टेंस लैण लगे हां, ठीक है। ते इहदे बाद मैं इधर करन लगी हां काम, ते AP मतलब फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, पहले मैं AP ही बना रही हाँ, फिर बाद विच इहदे विच असीं पुट कर दांगे, इनू एक लिख के रख देंदे हां x2 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दा होल स्क्वायर सारे दा, क्योंकि स्क्वायर रूट का अगर मैं साइन हटावांगी तो 1/2 पावर लगेगी और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैंसल हो जाएगी, ठीक है। और इक्वल टू हुण x2 मैं फिल कर रही हूं, x2 क्या है तुहाडे कोल x माइनस x1 क्या है 2, x1 तुहाडे कोल 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 की है 0 माइनस हुण तुहाडे कोल y2 0 -5 बिल्कुल वैसे ही रखना इज द होल स्क्वायर। मैं दोनों नू अलग अलग सॉल्व करके दिखा रही हूं, फिर इन्होंने असीं इक्वेट कर दांगे। हुण ये a माइनस b होल स्क्वायर है, मीनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ते a माइनस b होल स्क्वायर मीनस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 दा होल स्क्वायर 25, ये तुहाडे कोल आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x
प्लस 25 है, ठीक है 25। और हुण तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। हुण मैं दूसरी और बीपी नूं करन लगी हाँ। बीपी इत्थे AP होल स्क्वायर भी कर दो, AP होल स्क्वायर, ठीक है। हुण मैं BP होल स्क्वायर फाइंड आउट कर रही हाँ। हुण असीं इनू फर्स्ट एंड सैकेंड पॉइंट ले लांगे। सैकेंड पॉइंट मैं आ लिया, फर्स्ट पॉइंट मैं ही लिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हाँ। मीनस हुण मैं x2 मीनस x -2 होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मीनस 0 -9 होल स्क्वायर, इहदा स्क्वायर रूट फिर होल स्क्वायर भी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर द होल स्क्वायर। हुण होल स्क्वायर नाल थोड़ा कैंसल हो जाएगा। हुण माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस x+2 होल स्क्वायर ये बनेगा। हुण स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ना कैंसल हो गया। स्क्वायर रूट नूं जद असीं हटांदे हां तो 1/2 पावर मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1 कैंसल हो जाता है। प्लस -9 होल स्क्वायर 81 -9 मल्टीप्लाई बाय -9। हुण इहनूं a होल स्क्वायर मीनस x होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर मीनस 2 होल स्क्वायर, तुहाडे को 4 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। इसी तरह इत्थे भी तुसी ऐड कर लो इनू, ये तुहाडे कोल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है। हुण मैं 1 दे विच इनू फ्रॉम 1 1 तो उत्थे भी चाहो तो उत्थे इकट्ठा भी कर सकते सी। ए बी दी मैं वैल्यू भर रही हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू मतलब AP होल स्क्वायर नू करके BP होल स्क्वायर दे बराबर हुण मैं इक्वेट कर रही हाँ, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 असीं इहनूं सॉल्व कर लिया। हुण असीं सारी टर्म्स नूं एक्स दे विदाउट वाली टर्म जिहड़ी है राइट साइड ले जाएंगे और चाहे वो स्क्वेयर वाली है वो भी इधर ले आवांगे। एक्स स्क्वेयर प्लस दे सी इधर आके माइनस हो गए, -4x ये तुहाडे 4x जिहड़े इधर प्लस दे सी इधर आके -4x हो गए इक्वल टू 85 और 29 उधर जाएंगे, इधर प्लस दे सी उधर जाके माइनस दे हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस दे एक्स स्क्वायर माइनस कैंसल हो गए, ये तुहाडे को -8x इक्वल टू -8x 85 दे विचों हुण तुसी 29 नूं सबट्रैक्ट करोगे, 7 2 इहदे चों सबट्रैक्ट किया 56 आ गया तुहाडे कोल, ये प्लस वाले साइन ही रहेगा और x इक्वल टू 56 -8 माइनस साइन ऊपर सामने लगाता और हुण इहनूं कैंसल करोगे तो -7 आ जाएगा और तुहाडा आंसर जिहड़ा है इस क्वेश्चन दा जिहड़ा है कोआर्डिनेट्स उस पॉइंट दे तुहाडे कोल जिहड़े है -7,0 आएंगे। वो पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट जिहड़ा एक्स एक्सिस ते होएगा वो किहड़ा है P जिहदे कोआर्डिनेट मैनूं मिल गए -7,0, ठीक है। ये तुहाडा क्वेश्चन नंबर है। हुण एक होर तुहाडा इहदे विच क्वेश्चन रह गया, एक होर क्वेश्चन है ओह उस बिंदु दे निर्देशांक पता करो जो कि बिंदु -1,7 ਅਤੇ 4,-7 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। Find the coordinate of a point which divide the joining of -1,7 and 4,-7 in the ratio। इस बार इत्थे सानू रेशो दिती गई है ते असी उस दे अनुसार क्वेश्चन नू हुण करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नू जड़ा है वो लिख रही हैं। इत्थे मेरे कोल 11 क्वेश्चन जड़ा है, मेरे कोल 2 पॉइंट हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है।
मेरे को इस तरह पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है मान लो ए जिहदे निर्देशांक कोआर्डीनेट्स -1,7 हैं। बी पॉइंट जड़ा ਉਹਦੇ निर्देशांक 4,-3 हैं। एक होर पॉइंट है ਉਹਨੂੰ मान लो मैं P ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ और ਉਹਦੇ कोआर्डीनेट्स x, y हैं और ये इसनों जड़ा है उस पॉइंट के निर्देशांक याद करो जो कि इनू मिलान इनू 2:3 विच डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट इनू 2:3 मीनस ये मेरा M1 है रेशो, ये मेरी M2 है। मैनू P दे निर्देशांक x और y दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द टू पॉइंट्स ने ज्वाइन करने वाली लाइन विच दे उत्ते एक पॉइंट है जिहड़ा कि ए बी नू 2:3 च डिवाइड कर रहा है। मतलब M1 तुहाडा 2 है, M2 तुहाडा 3 है। सैक्शन फॉर्मूला सीधा ही तुहाडा है ਇਹ और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x1 y1 ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, ਇਹ x2 y2 ठीक है ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1। दूर वाले निर्देशांक दे नाल हमेशा मल्टीप्लाई होएगा। अगर m2 है तो ओहो x1 ना मल्टीप्लाई होएगा। जब x दे निर्देशांक तुसी x दे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने अपॉन m1 प्लस m2। नीचे उन्होंने जड़ा है तुसी उन्होंने ऐड करना है, रेशो नु ऐड करना। ओके चलो m1 थोड़े को क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x1 -1 ते दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 + 3। ठीक है ये थोड़े को आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। ठीक है 8 -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आ गया अपॉन 5। 8 to 5 अपॉन 5 दैट इज 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰ x2 x1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y2 y1 ਆਏਗਾ। m1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m1 ਤੁਹਾਡਾ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय y2 -3 प्लस m2 3 multiply by 7 and upon 2 plus 3 2 plus 3 हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 multiply by -3 -6 plus 21 3 multiply by 7 तीनों 7 गुणा की 21 और बेटा 5 आ गया ਤੁਹਾਡਾ। और एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक उल्टे चिन्ह वाली संख्यावां ऑपोजिट साइन वाले नंबर सॉल्व करने लिए हमेशा सबट्रैक्ट होएगा, घटाया जाएगा और साइन लगेगा 21 का। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 15/5 और इनू कैंसल करोगे 3 ते P दे x, y कोआर्डिनेट क्या ਤੁਹਾਨੂੰ मिले आंसर विच ਤੁਹਾਨੂੰ P दे कोआर्डिनेट्स क्या मिले P दे 1,3 ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा P दे कोआर्डिनेट्स। बस ये 2-3 तरह के ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन बनते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस वाला, एक रेशो फाइंड आउट करने वाला और एक वो पॉइंट जड़ा कि एक लाइन नो किसी पर्टिकुलर रेशो च डिवाइड करता है उस पॉइंट के निर्देशांक निकालने वाला। बस इन्ने ही क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। सब तो जरूरी क्या है डिस्टेंस फार्मूला, सैक्शन फार्मूला, इन्होंने अच्छी तरह रटो तुसी। ओके।